أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کے حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ اس ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے۔ اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو اپنے بندوں سے بڑی محبت کرنے والا، ان کے گناہوں کو بخشنے والا ہے، غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے۔ بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر توڑا کروڑ انجنت بے شمار درود و سلام ہو، صلی اللہ علی محمد وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج میں نے قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے۔ ہماری آیتیں ہماری سلسلہ وار درس کی اگلی کڑیاں ہیں۔ میں نے آیت نمبر 84 سے لے کر 86 تک یعنی 3 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ 3 آیتیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1 رکو نمبر 10 کی بالکل آخری آیتیں ہیں۔ گویا کہ سورہ بقرہ کی رکو نمبر 10 میں صرف 4 ہی آیتیں ہیں۔ ہم نے آیت نمبر 83 کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور اس کی تفسیر ہم نے پچھلے درس میں سنا۔ اس ایک آیت کے بعد اب یہ 3 آیتیں ہیں جن کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ تینوں آیتیں ایک ہی مضمون، ایک ہی موضوع سے جڑی ہوئی ہیں، لہٰذا ان تینوں کو ایک ساتھ پڑھنا اور ان تینوں کا ایک ساتھ معنی اور مطلب سمجھنا بھی ضروری ہے، تب جا کے یہ موضوع مکمل ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رکو نمبر 10 کی جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 83 میں
کہا تھا کہ ہم نے بنو اسرائیل سے عہد لیا، میثاق لیا، وعدہ لیا. کیا ہے بنو اسرائیل؟ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرنا. لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت مت کرنا. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا. وذی القربا، اور جس طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو ویسا ہی حسن سلوک اپنے قرابت داروں اور رشتے داروں کے ساتھ بھی رکھنا. والیتاما، اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرنا. والمساکین، اور وہ لوگ جو اپنی پوری محنت و مشقت کے باوجود بھی اپنے ماتحت بال بچوں اور بیوی بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتے اور اپنی ضروریات زندگی کو پورا نہیں کر سکتے، ایسے مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرنا. وقول للناس حسنا، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ بھی تمہاری ربط میں آئے ان کے ساتھ اچھی بات کرنا، بہتر بات کرنا. وقول للناس حسنا، قولا معروفا، یعنی اچھی بات کرنا. اور نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا. تو اللہ نے اتنی چیزوں کے تعلق سے جب بنو اسرائیل سے عہد لیا تو اللہ کہتا ہے بنو اسرائیل پھر اس سے انہوں نے منہ پھیر لیا. ثم تولیتم الا قلیلا منکم، تم سب کے سب نے اس عہد سے منہ موڑ لیا سوائے چند کے. وانتم معرضون، اتنا ہی نہیں کہ صرف تم نے منہ موڑا بلکہ اس عہد کا پاس اور لحاظ نہ رکھتے ہوئے اس کو توڑ بھی دیا اور اس کی خلاف ورزی بھی کی، اس کے خلاف بھی کیا. اللہ کو چھوڑ کر تم نے دوسروں کی عبادت کی، یا اللہ کے ساتھ میں تم نے دوسروں کو بھی شریک کر لیا. ماں باپ کی نافرمانی کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نے کیا، قرابت داروں کے ساتھ رشتہ توڑ دیا، یتیموں کا مال ہڑپ کر کھا گئے. یتیموں کی جیسی پرورش اور دیکھ بھال کرنی چاہیے کہ ویسی نہیں تھی. مسکینوں کے ساتھ بھی معاملہ تمہارا الٹا رہا. جب لوگوں سے اچھی بات کرنے کا معاملہ آتا تو ہمیشہ ٹیڑھی اور تیز سرخ والی بات کہتے، نماز کو کبھی قائم نہ کرتے اور زکوٰۃ کبھی ادا نہ کرتے. تم نے سارا کا سارا معاملہ الٹا کر دیا. اس طرح اللہ نے آیت نمبر 83 میں بنو اسرائیل کے تعلق سے بیان کیا. اب آئیے آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ پھر یہی کہتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو اے بنو اسرائیل اس وقت کو بھی جب کہ ہم نے تم سے ایک اور میثاق، ایک اور عہد لیا. وہ یہ جو عہد ہے یہ ان کی توریت میں لکھا ہوا ہے. اس طرح اوپر کے عہد بھی ان کی توریت میں لکھے ہوئے تھے، ان سے کہا گیا تھا کہ توریت ان احکامات پر عمل پیرا ہونا. اسی طرح یہ جو آگے کے احکامات ہیں آیت نمبر 84 میں، یہ بھی ان کی توریت میں لکھے ہوئے تھے اور کہا گیا تھا کہ ان احکامات پر عمل کرو. ان احکامات کے ذریعے سے تم سے عہد لیا جاتا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جبکہ ہم نے بنو اسرائیل سے عہد لیا اور توریت میں ان کے لیے حکم لکھ کر دیا. کیا عہد تھا؟ لا تسفكون دماءکم، کہ تم قتل و غارت گری نہیں کرو گے، خون ریزی نہیں کرو گے، تم آپس میں ایک دوسرے کا قتل نہیں کرو گے، آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ ہی تم نکال باہر کرو گے آپس میں ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے، اپنے ہی لوگوں کو ان کے گھروں سے تم جلا وطن نہیں کرو گے. ثم اقررتم وانتم تشهدون، پھر تم نے اقرار کیا، تم نے اس عہد کو مانا اور تم اس بات کے گواہ بھی ہو. وانتم تشهدون، تم نے
ان عہد کا اقرار کیا، ان کو مانا اس بات کے تم خود گواہ بھی ہو. ثم انتم هؤلاء، جو عہد اللہ نے لیے، ایک اور عہد بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہا ہے. اس کو اللہ کہتا ہے آیت نمبر 85 میں، ثم انتم هؤلاء، پھر تم ہی لوگ ہو وہ لوگ جو تقتلون انفسکم، کہ آپس میں ایک دوسرے کا قتل کرتے. یہ جو رکوع ہے، رکوع نمبر 10، اس میں بہت ساری نصیحتیں ہیں امت محمدیہ کے لیے، بہت ساری نصیحتیں ہیں بنو اسرائیل کے ذریعے سے، جس سے اللہ تعالیٰ پچھلی آیتوں میں بنو اسرائیل کی وہ غلطیاں، وہ نقص بتلا کر ہی کہتا ہے کہ اے امت محمدیہ، تم نے یہ نقص اور یہ بیماری نہیں آنی چاہیے، تم میں یہ خرابی نہیں پیدا ہونا چاہیے. اسی طرح ایک اور بڑی بیماری جو بنی اسرائیل میں موجود تھی، عام طور پر امت محمدیہ میں یہ شرائط کر چکی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے ان آیتوں کے ذریعے سے اور امت محمدیہ کی اصلاح چاہتا ہے. بہت ساری نصیحتیں. اللہ کہتا ہے ہم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، تم نے اقرار کرنے کے بعد، عہد کو ماننے کے بعد، اس پر جبکہ تم خود گواہ ہو، پھر بھی تم ہی تو وہ لوگ ہو کہ آپس میں ایک دوسرے کا قتل کرتے ہو. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم جلا وطن بھی کرتے ہو آپس میں ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے. تیسرا جو حد تھا وہ کیا تھا؟ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور تم مدد کرتے ہو ایک دوسرے کی، ایک دوسرے پر گناہ اور ناانصافی کے کاموں میں، گناہ اور ناانصافی کے کاموں میں تم ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہو. یہ تیسرا حد تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد گناہ اور ناانصافی کے کاموں میں نہیں کرو گے. یہ ان کی توریت میں لکھا ہوا تھا. 3 حد اللہ نے لیے. اللہ کہتے تینوں سے انہوں نے اقرار کرنے کے بعد، خود گواہ ہونے کے بعد بھی ان کو توڑ دیا، آپس میں قتل بھی کیا اور اپنے ہی لوگوں کو گھروں سے نکالا اور ایک دوسرے کی مدد بھی کی گناہ اور ناانصافی کے کاموں میں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے بھی سورہ مائدہ کے اندر مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے، جو حکم اللہ نے دی وہ ایسے ہی، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. وہی آیت ہے، تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. وہی آیت اللہ نے سورہ مائدہ میں لفظ استعمال کیا اور مسلمانوں سے، مومنوں سے مخاطب ہو کر اللہ نے کہا، کیا کہا؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، معاونت اختیار کرو، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں. معلوم ہوا کہ جہاں بھی نیکی اور تقوی کا معاملہ ہو، ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. وَتَعَاوَنُوا، یہ حکم جملہ ہے، اور مدد کرو آپس میں ایک دوسرے کی عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. جہاں کہیں بھی تقوی کا معاملہ ہو، عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور جہاں کی تقوی اور پرہیزگاری کا معاملہ ہو، ایک دوسرے کی مدد کرو. اس کے مطابق ایک اور اللہ نے ایک اور حکم دیا، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ہرگز آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دینا گناہ کے معاملے میں اور ناانصافی کے معاملے میں. ظلم اور زیادتی کا معاملہ ہو تو آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دینا، جو ظلم کر رہا ہے اس کو چھوڑ دینا، اور جو گناہ کا کام کر رہا ہے اس سے الگ ہو جائے. اسی طرح کا حد بنو اسرائیل سے بھی لیا گیا تھا، اس میں اللہ نے کہا تھا کہ اے بنو اسرائیل، اللہ تعالیٰ تم سے عہد لیتا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا قتل مت کرو، اور نہیں آپس میں ایک دوسرے کو اپنے اپنے گھروں سے جلا وطن کرو، اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد بھی نہ کرنا گناہ اور ناانصافی کے کام میں. یہ آیت کا پس منظر کیا ہے؟ اس آیت کو نازل کرنے کا مقصود کیا ہے؟ مدینہ میں 2 بڑے اور مشہور قبیلے تھے، ایک اوس اور دوسرا خزرج.
औस और हजरत ये मदीना के लोग, जिनके नबी खुदा वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करते हैं तो इन्हीं कबीलों के पास आते हैं। इसी में से अक्सर लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भी होते हैं। जिस तरह मदीना में ये दो कबीले थे औस और हजरत, इसी तरह मदीना ही में यहूद के 3 कबीले थे बड़े बड़े मशहूर, बनो कैनुका, बनो नजीर और बनो कुरैजा। बनो कैनुका, बनो नजीर और बनो कुरैजा, ये तीनों यहूद के 3 बड़े कबीले थे। ये भी मदीना के, क्या मदीना के आसपास रहते थे, मदीना के इलाके। बनो कैनुका और बनो नजीर, ये जो 2 कबीले हैं यहूदियों के, ये हलीफ थे खजरज कबीले के, भाई बंद थे। मतलब जहाँ बड़े बड़े कबीले रहा करते थे वहां पर एक कबीला दूसरे कबीले से कुछ अच्छे ताल्लुकात रखता था ताकि जंग जिदाल के मामले में एक दूसरे की मदद कर सके, इसको कहते हैं हलीफ। बनो कैनुका और बनो नजीर दोनों खजरज के हलीफ थे, ये दोनों आपस में एक दूसरे के दोस्त थे, ये सही भाई बंद थे। रिश्तेदारी इस तरह की थी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। जंग जिदाल का मामला आता तो ये तीनों कबीले मिलकर लड़ते थे। उसी तरह बनो कुरैजा के हलीफ औस थे, बनो कुरैजा और औस के दरमियान भाई बंद का ताल्लुक था, भाईचारे का ताल्लुक था। हालांकि एक मदीना के लोग थे और एक यहूदियों का कबीला था, इनके दरमियान हलीफ, इनके दरमियान हलीफ और भाईबंद थे। और आप के मदीना आने से पहले औस और हजरत इन दोनों में बहुत ज्यादा इख्तलाफ, बहुत ज्यादा झगड़ा होता था, यहाँ तक के जंग जिदाल और कत्ल गारतगी भी होती थी। जिस तरह औस और हजरत के दरमियान ये मामला होता, उसी तरह यहूदियों के इन तीनों कबीले में भी ये मामला था कि तीनों कबीले आपस में इख्तलाफ करते रहते थे और जंग जिदाल भी होती, कत्ल गारतगी भी इनके दरमियान होती थी। जब भी एक कबीले को कोई दूसरा कबीला छेड़ता या किसी किस्म का मामला बिगड़ता तो हजरत का साथ देने के लिए बनो कैनुका और बनो नजीर आ जाते और औस का साथ देने के लिए बनो कुरैजा आ जाते। अब क्या होता कि जब जंग हो जाती तो जाहिर सी बात है, एक को हारना है, एक को जीतना है, एक मगलूब होगा, एक गालिब होगा। अब जब कोई कबीला यहूदियों का, बात यहूदियों की चल रही है, न कि औस और हजरत की, बात यहूदियों की चल रही है, बनो इसराइल की चल रही है। अगर बनो इसराइल का कोई कबीला मगलूब होता है, हो जाता है, इस मिसाल के तौर पर लीजिए कि बनो कुरैजा मगलूब हो गए औस के साथ मिलने की वजह से, है ना, हार गए, मगलूब हो गए, तो बनो कैनुका बनो नजीर औस के पास, अपने हजरत के पास जाते, फिर हजरत वालों ने उन्हें गुलाम बना लिया, जो हार जाते उन्हें गुलाम बांदी लौंडी बना लेते। तो बनो कैनुका और बनो नजीर के लोग हजरत जो कि अपने हलीफ हैं, अपने साथीदार, उनके पास जाते और उन्हें फिदिया देते और अपने यहूदियों को छुड़ा लेते। गौर कीजिए इस बात को, क्या हो सकता है अल्फाज के बार बार इस्तेमाल करने से कंफ्यूजन क्रिएट हो, मगर बात को समझिए ताकि आयत समझ में आ जाए, तो आयत समझ में नहीं आने। बनो कैनुका बनो नजीर गलबा पाने के बाद हजरत के पास जो लोग बंदी बनते उनको फिदिया देकर छुड़ा लेते, फिदिया देकर, कुछ माल मता देकर उनको कैदीपन से निकालते। और पूछते क्यों ऐसा कर रहे हो, तो कहते कि हमारी तौरात में लिखा है कि अगर तुम्हारा आपस का कोई आदमी कैदी बन जाए तो उसको फिदिया देकर छुड़ा लो। आपस में एक दूसरे अगर कोई कैदी बन जाए तो हमारी तौरात में लिखा है कि उसको फिदिया देकर छुड़ा लो, है ना।
अमल मुतजाद नजर आ रहा है, बनो इसराइल का अमल मुतजाद नजर आ रहा है। क्या? एक तरफ जंगो जिदाल भी खुद आपस में कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बंदी बनाए जाने के बाद, कैदी बनाए जाने के बाद खुद ही फिदिया देकर छुड़ा भी रहे हैं, है ना। इस बात को अल्लाह ताला आगे के टुकड़े में कहता है, जिसे आयत नंबर 85 में, आयत नंबर 85 बहुत बड़ी है। अल्लाह कहता है वही अतूकुम उसावा, और जब तुम्हारे ही फिरके का कोई आदमी तुम्हारे पास, तुम्हारे ही दीन का कोई आदमी तुम्हारे पास बंदी होकर आता है, कैदी होकर आता है, तो फादू हो, तो तुम ही उसको फिदिया दे देते हो और उसको छुड़ा लेते हो, है ना। बनो कुरैजा, बनो कैनुका और बनो नजीर, ये दोनों यहूदियों के ग्रोह। बनो कुरैजा भी इन्हीं का ग्रोह। तीनों के पास एक ही किताब है तौरात, गोया कि तीनों एक ही किताब पर इनका अमल होना चाहिए, सारे अहकामात पर अमल होना चाहिए। अल्लाह कहता है वहुवा मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुकुम, अरे सबसे पहले तो तुम पर ये हराम ही था कि तुम अपने ही लोगों को जिला वतन करो। तुमने जंग व जिदाल का मामला छेड़कर अपने ही एक ग्रोह को, अपने ही एक फिरके को तुमने जिला वतन किया। सबसे पहले ये काम तुमने किया। क्या ये तौरात की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या ये अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी नहीं है? सबसे पहले अल्लाह ने ये कहा था कि जंग व जिदाल न करना, तुमने जंग व जिदाल किया, आपस में एक दूसरे को काटा, लड़ाई की, खून बहाया। जबकि हमने तुमसे अहद लिया था ला तस्फिकून दिमाकुम, कि तुम आपस में एक दूसरे का खून नहीं बहाओगे, तुमने खून बहाया। सबसे पहले हमारे हकाम की खिलाफ वर्जी की, उसके बाद अपने ही लोगों को जिला वतन किया। उसके बाद जब वो मगलूब हो गए और किसी के, तुम्हारे ही हनीफ के जब वो कैदी बन गए, तो उनके पास जा रहे हो और उन्हें फिदिया देकर छुड़ा रहे हो, और अब हवाला देते हो तौरात का। अब तक तौरात कहाँ गई थी? अब तक अल्लाह के अहकामात कहाँ थे? जंग व जिदाल होने तक तौरात गायब, तौरात के अहकामात गायब, उन्हें जिला वतन करने तक तौरात गायब, उसके अहकामात गायब। जब मामला फिदिया देकर छुड़ाने का आया तो फौरन तौरात आगे, उसके अहकामात भी आगे, उस पर अमल पैरा भी हो गए। तो अल्लाह कहता है वहुवा मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुकुम, सबसे पहले तो तुम पर यही बात हराम थी कि उन्हें जिला वतन करते, जंग जिदाल करके तुमने जिला वतन जो किया, यही बात तुम पर हराम थी। अब अल्लाह कहता है, बड़ा प्यारा सवाल करता है, काश ये सवाल हर फिरके को, हर गुरोह को, हर जमात वाले को ये सवाल उसके दिल में चुभ जाए। अल्लाह कहता है अफतुमिनून बिबाज़िल किताब तकफुरून बिबाज़, अल्लाह ताला बनो इसराइल से कहता है कि क्या तुम किताब की बाज बातों पर ईमान लाते हो और बाज बातों को इनकार कर देते हो? बाज बातों को तो मानते हो और बाज बातों को इजी ले लेते हो, छोड़ देते हो, है ना। जैसे फिदिया देकर छुड़ाना हम था उनके लिए, इस पर अमल पैरा हो गए। जंग जिदाल कत्ल गायदगिरी मत करो, इसकी अहमियत नहीं, इसको छोड़ दिया। जिला वतन करना बड़ा अहम है, इसको छोड़ दिया। तो अल्लाह कहते हैं अफतुमिनून बिबाज़िल किताब, क्या तुम किताब की बाज अहकामात पर तो ईमान लाते हो, तकफुरून बिबाज़, और बात को छोड़ देते हो। और सही अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूँ, कुरान मजीद ही एक वाहिद ऐसी किताब मेरे इल्म से गुजरी है कि शुरू से लेकर आखिर तक पढ़वा, एक भी बात दूसरी बात के खिलाफ जाती हुई नजर नहीं आती, टकराती हुई नजर नहीं आती। जो बात यहाँ पढ़ेंगे आगे जाने के बाद ही वही बात पढ़ेंगे, उसका ज्यादा और खुलासा मिलेगा, तफसीर मिलेगी। इसके अलावा मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ा हुआ है। सफा नंबर 10 पर अगर कोई बात हो तो ज्यादा दूर नहीं, सफा नंबर 11 या 12 पर इसके उलट बात लिखी हुई होती है। इंसान है, इंसान जब कोई बात लिखता है, भले अच्छी नीयत से की हो, नेक नियति से हो, नसीहत के लिए हो, मगर मुतजाद बातें इंसान से हो जाती हैं। सिर्फ अल्लाह की वाहिद एक किताब है जिसमें मुतजाद बातें नहीं है ना। अल्लाह ताला कहता है जो अल्लाह ऐसी किताब नाजिल करता है, तो क्या इस किताब की या इस
ये दीन जो अल्लाह की तरफ से है, इसकी तो बाज बातें मानते हो और बाज बातों को छोड़ देते हो। अब तो मिनून अभी बाजुल किताब तकफुरून बिबाज, क्या तुम बाज को तो मानते हो और बाज को छोड़ देते हो? ये बनो इसराइल की उस नक्श, उस गलती, उस रविश का जिक्र अल्लाह ताला कर रहा है जो बनो इसराइल में उनके दीन के ताल्लुक से था। यानी दीन को तो वो मानते थे, अपने आप को यहूद तो कहते थे, मगर यहूदियत के जो उसूल थे जिस पर यहूदियत मुनहसिर था, उन्हीं उसूलों में से बात को मानते थे और बात को नहीं मानते थे। तो अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई। अल्लाह कहता है अगर तुम यहूदी रहना चाहते हो तो पूरे के पूरे यहूदी रहो, अगर नहीं तो पूरी तरह छोड़ दो, थोड़ा तीतर थोड़ा बटे, एक पैर दहलीज में के बाहर, एक पैर दहलीज के अंदर। अल्लाह कहता है ऐसा मत करो। तो अल्लाह ताला यहूदियों से मुतवक्का है, अल्लाह ताला यहूदियों से ये तवक्का रखता है कि अगर वो तौरात को मानते हैं तो पूरी तरह माने। मेरा सवाल है, क्या उम्मत मोहम्मद या मुसलमान को अल्लाह ने ऐसे ही छोड़ दिया है कि इनसे कोई तवक्का ही नहीं है? कि अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदिया और मुसलमानों से ये तवक्का नहीं रखेगा कि ये भी पूरे के पूरे मुसलमान हो जाए, पूरे के पूरे इस्लाम लाने वाले हो जाए, पूरे के पूरे ईमान वाले हो जाए, आधे अधूरे नहीं। इसलिए अल्लाह ताला क्या कहता है कुरान में, या अल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालों, मुखातिब अल्लाह ताला ईमान वालों जो ईमान ला चुके हैं, अभी भी कुछ बाकी है, कुछ परसेंटेज, इसे अल्लाह कह रहा है उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, तुम सब के सब इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। यानी इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल न होना ये यहूदियों की रविश है। इंसान से हत्तल मकदूर, मोमिन से हत्तल मकदूर जितनी कोशिश हो पूरा का पूरा इस्लाम पर अमल करे, कुछ को माने कुछ को न माने, ऐसी रविश इख्तियार नहीं करना चाहिए। इसकी सजा बड़ी खतरनाक है। आयत 85 और 86 में अल्लाह ने इसी बात का जिक्र किया है कि जो लोग आधे तीतर आधे बटेर की नकल करते हैं, कौवा चला हंस की चाल और खुद अपनी चाल भूल गया। जब इंसान अपने इल्म को छोड़कर, अपने दीन को छोड़कर किसी और दीन की रविश इख्तियार करने की कोशिश करता है तो न वो खुद के दीन पर रहता है न किसी और के दीन पर। तो इसकी सजा भी अल्लाह ताला ने आयत नंबर 85 और 86 बड़ी सख्त बतलाई है। तो ये रविश मुसलमानों में भी है। कौन सी? दीन के बाद अहकामात को मानना, बाद अहकामात को न मानना। अभी इससे पहले मैंने बात दोहराई थी कि एक साहब से बात हो रही थी मुलाकात में, तो मैंने नमाज का बिलखुसूस सफ सीधा करने का एक अमल हदीस से मैंने बताया, जिसमें दो बातें थी, मैंने दोनों उनके आगे रखी। जज साहब ने कहा कि ये तो दो बातें इस हदीस में है, ऊपर वाली बात हमारे मुताबिक है, नीचे वाली बात हमारे मुताबिक नहीं है। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो कहा ऊपर का जो मसलक है वो हमारा है, नीचे का मसलक हमारा नहीं। मैंने कहा एक ही हदीस के दो टुकड़े कैसे हो सकते हैं कि एक तुम्हारे मसलक का और एक दूसरे मसलक का? हाँ, ये हो सकता है कि एक हदीस दूसरे मसले की, एक और हदीस दूसरे मसले की, चलो कुछ बात हजम होती है, जबकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इस्लाम एक है तो सबका होना चाहिए, न कि बांट लिए थे तुम्हारी अलग हमारे अलग। चलो आयतें ही बांट लेते, 4 आयतें तुम्हारी और 8 आयतें हमारी, कुरान को बांट लिया जाए। ये इसलिए है क्योंकि बाज अहकामात पर तो ईमान है, बाज अहकामात पर ईमान नहीं है, अमल करने को दिल डरता है। क्यों? इसलिए डरता है कि शैतान ने बहुत ही खतरनाक चाल मुसलमानों के साथ चली। वो इस्लाम जो बड़ा ही प्यारा सादा लोग सीधा सादा था, इसको पहले आका वसल्लम 14.5 साल पहले लेकर आते हैं, इस इंसानियत के आगे पेश करते हैं। इंसानियत इस खुशबहार इस्लाम को लेकर खुश है, और अफसोस सद अफसोस कुछ सदियां गुजरती हैं, 100-200 साल गुजर जाते हैं,
अब लोग कहते हैं कि नबी वसल्लम के 100-200 साल के बाद इस्लाम ऐसा हो गया कि इतना पेचीदा हो गया, इतना मुश्किल हो गया कि अब इंसान को इस पर अमल करना नामुमकिन हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुसलमानों की अकाइद है, ये उनकी सोच है। इस्लाम इतना मुश्किल हो गया कि अब आप वसल्लम का लाया हुआ दीन 200 साल के आगे नहीं बढ़ रहा है, खत्म हो गया, इतना मुश्किल हो गया, इतने इख्तलाफात हो गए। उसके बाद कुछ लोग पैदा होते हैं, इस दीन को फिर से स्टडी करते हैं, रिक्रिएशन करते हैं, तजदीद करते हैं। अल्लाह अकबर, अफसोस जुबान लड़खड़ाती है अल्फाज इस्तेमाल करने में। ऐसा दीन को संभालते हैं कयामत तक चलता है। मेरे को समझ नहीं आता नबी बड़े हो गए कि बाद के पैदा होने वाले बड़े हो गए। अब चलो जी, उसकी तस्दीद कर भी नहीं तो तस्दीद के अंदर कुरान मजीद होना चाहिए, अहादीस रसूल होना चाहिए, इन दोनों का नाम और निशान नहीं है। मगर बराए नाम सबने क्या कर दिए, हाँ फला आयतें आपकी है, फला आयतें हमारी है, फला हदीस से आपकी है, फला हदीस से हमारी है। यहाँ तक के जैसे एक मिसाल दिया मैंने, एक ही हदीस के 2 टुकड़े करके बात लिए, फला टुकड़ा तुम्हारे मसलक का, फला टुकड़ा हमारे मसलक का। अब कयामत तक यही मामला चल है। नहीं, आप वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं वो सिर्फ 200 साल, 250-300 साल चला, बस उसके बाद खत्म हो गया। यानी आप वसल्लम के अंदर उतनी ताकत नहीं थी कि दीन इस्लाम कयामत तक रख सके। उसके बाद जो लोग आए उन्होंने ऐसा दीन का रिक्रिएशन किया कि कयामत तक चलने लगा। बड़ा घिनौना बुनियाद पढ़ी जाए, इस्लाम की बुनियाद क्या है? ये है होता है अफतुमिनून बिबाज़िल किताबी, तकून विवाद। इस्लाम के बाद हकामात को मानते हैं और बाद को नहीं मानते। एक मिसाल देता हूँ, सकता है आप लोग कहें कि शराब देख कैसी बातें करते हैं, हकीकत है। जब हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे लोगों से मुलाकात की, तब जाके अकाईद सारे सामने आए, समझ में आई कि वाकई लोग ऐसा समझते हैं कि कुरान मजीद डायरेक्ट पढ़ा जाए तो गुमराही है। लोगों ने कहा है अहादीस किताब है, वल्लाह एक मदरसे से आलिम, एक मदरसे से फारिग और आलिम भी नहीं समझ सकता। जब ये अकीदा होगा तो कुरान मजीद और अहादीस से कहाँ से रहनुमाई मिलेगी? हर कोई 100 साल, 200 साल, 10 साल, 20 साल पुरानी किताबें ही पढ़ता रहेगा। उन ओरिजिनल किताबें जो 14.5 साल पहले चली आ रही है, उनको कभी कोई नहीं देखने वाला। तो होना ही चाहिए, उनकी रोशनी में आप जिनको समझो। हाँ, लोगों ने अपनी तरफ से कुछ मसाइल झड़े और कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ चीजें गलत है, जो गलत है वो गलत है। लोगों ने अपनी तरफ से कुछ मसाइल घड़े और उसको कहा कि ये कुरान मजीद और अहादीस का निचोड़ है। क्या कहा? कुरान मजीद और अहादीस का निचोड़ कहकर उन मसाइल को दीन में शामिल कर दिया, उन अकाइद को दीन में शामिल कर दिया। ऐसा कि मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता हूं कि वो मिसाल वैसी जैसा यहाँ पर यहूद की जो रविश है वैसी मिसाल है। कहते हैं कि अगर कोई शख्स रोजे की हालत में है, देखिए ये मिसाल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह इस आयत को समझाने के लिए दे रहा हूं, वरना ये जो बयान कर रहा हूं किताबों में मौजूद है, लोगों ने इन्हीं की बुनियाद पर फतावे भी दिए हैं। अगर कोई शख्स रोजे की हालत में हो और वो चाहता है कि अपनी बीवी से जुमा करे, सोबत करे, तो क्या करना चाहिए? कहते हैं कि सबसे पहले थोड़ी सी शराब पी, उसके बाद अब वो नशे में हो गया, जिमा करने के बाद वो जो रोजे की हालत में औरत से जिमा करने का जो कफारा है उससे बचना चाहते हैं, उससे बचने का ये हीला और बहाना बताया गया है। और ये अरबी किताब है जिसका मैं उर्दू आपके आगे सुना रहा हूँ। तो कहते हैं कि उसके बाद शराब पीने में कुछ खा पी ले, इस तरह वो रोजे की हालत में उसके बाद बीवी से जिमा करे, तो रोजे की हालत में बीवी से जिमा करने का जो कफारा होता है उस पर से साकिद हो जाएगा। ये मसला है ना, ठीक है, मसला है, कोई हल नहीं, कयामत तक आने वाले सारे मसाइल हल हो गए। मेरा सवाल ये है कि जब तुम पर यही चीज हराम थी कि शराब पीना, उसको दीन में क्यों लाए? दूसरी चीज, रोजे की हालत में क्या कोई शख्स कोई चीज खा पी सकता है? तुमने खाने को जायज करा दिया। जब रोजे की हालत में
जबकि तुम शराब पीना ही हराम है, पी ली है। रोजे के हाथ में खा पी नहीं सकते, तुमने खा पी लिया। रोजे की हालत में बीवी से जिमा नहीं कर सकते, इसी का नाम रोजा है, तुमने जिमा कर लिया। अब सवाल ये है कि रोजे की हालत में जिमा करने कफ्फारे से डर किस बात का? तो एक अहकाम को तो माना जा रहा है कि रोजे की हालत में जो जिमा करने का जो कफ्फारा है उससे बचना चाहते हैं। मैं पूछा इस बात का डर क्यों है, जबकि तो बहुत बड़े बड़े गुनाह तो तुमने कर लिए। ये है वो अहकाम जिनकी बुनियाद पर लोग आज फतावे देते हैं। यहाँ पर ही बनो इसराइल से अल्लाह कह रहा है तुमने तो कत्ल कर दिया, कत्ल आपस में दूसरे का, जिला वतन कर दिया, ये बहुत बड़ा गुनाह था। आपस में दूसरे की मदद भी की तुमने गुनाह और नाइंसाफी के कामों में। अब कह रहे हो कि अगर हमारे में से कोई कैदी बनता है तो हम उसको फिदिया देकर छुड़ा लेते हैं, तौरे पर अमल करते। अल्लाह ने कहा कि ऐसी अकल है तुम्हारी कि बाद अहकामात को तो मानते हो, बाद अहकामात को छोड़ देते हो। जहाँ दिल लगी करना है वहां कर लेते हो, जहाँ नहीं करना वहां छोड़ देते हो। जो अहकामात आसान हो उस पर अमल करते हो और जो अहकामात मुश्किल है उन्हें छोड़ देते हो। आज की तरफ आप उम्मत मोहम्मदिया छोटी छोटी सुन्नतों को ज्यादा ध्यान देती है। बड़ी बड़ी सुन्नतें, नमाज पढ़ना, दाढ़ी रखना, बावजू रहना, वजू पर वजू करना, मुश्किल सुन्नत। रात में तहज्जुद पढ़ना, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जो हो सकता है करना, ये बड़े बड़े काम है। लपलपाती है। केला कैसे खाना, ऊपर से खाना कि नीचे से खाना? खाना खाने से पहले मीठा खाना या खाना खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है, इसके बराबर ध्यान है। उंगलियां खाने के बाद कैसा चूसना चाहिए, पहली उंगली कौन सी, दूसरी, इसमें भी सुन्नत है। लोगों ने आदात के नाम से पेश कर दी लोगों के आगे, जो दीन का हिस्सा बन गई। पहली ये, दूसरी ये, तीसरी, उसमें भी तरतीब है, क्या ये सुन्नत है? और बड़े बड़े अहकाम तो छोड़ दिए। जब जंग जिदाल की बात आती है, गैर मुस्लिम के खिलाफ खड़े होने की बात आई तो कहते वो तो अल्लाह है साहब, अल्लाह देख लेगा। अल्लाह कहता है मुमिनून बिबाज़िल किताब तकफुरून बिबाज़, क्या तुम बाद अहकामात को तो मानते हो, बाद अहकामात को छोड़ देते हो? ये रविश इख्तियार करने पर जो सजा है ना, अल्लाह ताला 85 के आगे टुकड़े में कहता है फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, ये सजा है उनकी जो इस किस्म का अमल करे, इस किस्म का रद्द अमल पेश करे, इस किस्म की रविश पर चले। कुछ मानना कुछ न मानना, क्या है? इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया, कि दुनिया की जिंदगी में जिल्लत और रुसवाई उनके लिए मुकद्दर कर दी जाती है। वो यौमल क़ियामत युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब, और क़यामत के दिन वो सख्त अज़ाब की तरफ लौटाया जाए। अब उम्मत मोहम्मदिया की आयत में गौर फिक्र का एक नुक्ता है, ये कि क्या आज उम्मत मोहम्मदिया भी जिल्लत और रुसवाई में है? अगर है तो क्या कहीं यही मामला तो नहीं कि दीन का कुछ हिस्सा मान लेते हैं, कुछ हिस्सा छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये जिल्लत और रुसवाई इन पर भी लाद दी गई, जिस तरह यहूदियों पर लाद दी गई है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, अल्लाह कहता है इंसानों, बेशक अल्लाह बहुत बेहतर जानता है जो कुछ तुम अमल करते हो, अल्लाह तुम्हारे अमाल से गाफिल नहीं है। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरौल हयात दुनिया बिल आखिरा, ये वो लोग हैं कि दीन के बाद चीज को मानते हैं, बात को छोड़ देते हैं ना, इनमें ये भी खसलत होती है कि इन्होंने दुनिया की जिंदगी को खरीद लिया है आखिरत के बदले। यानी आखिरत में कामयाब हो या ना उससे कोई मतलब नहीं, दुनिया मिल जाए, दुनिया की चंद हो जाए, जिंदगी ऐश और इज्जत के साथ गुजर जाए, बहुत बड़ा कमाल हो जाता है, बहुत बड़ी कामयाबी उनके कदम चुनती है। कहते हैं बस दुनिया है, बस आखिरत कोई माने नहीं। ये ऐसे लोग हैं जो दीन के बातों को अपनी अकल, अपनी समझ, अपना दिल, अपना ग्रुप, अपना फिरका, अपना मसलक कह के बाज बातों को मान लेते हैं, बाज बातों को छोड़ देने चाहिए। वो लोग हैं जो सिर्फ दुनिया की जिंदगी को सही करना चाहते हैं, आखिरत से कोई सरोकार नहीं। जिसको आखिरत से सरोकार होता है, सबसे पहले ये देखता है कि मेरा अल्लाह क्या चाहता है, मेरा रब क्या चाहता है। उसके बाद ये देखता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह की तरफ से नबी बनाकर भेजे गए थे, उनकी क्या चाहत है। ये दो ही अगर गायब है, या दो में से कोई एक भी गायब है, बताओ कि दुनिया बन सकती है, आखिरत कैसे बन सकती है? अल्लाह कहता है फला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, और ये जो अज़ाब है ना, दुनिया की जिंदगी में रुसवाई और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब, इसमें कभी कमी नहीं होने वाली।
ये हमेशा बढ़ती रहे। वला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनसरून, और वो वहां पर मदद भी नहीं की जाएंगे। यानी कोई आएगा कहेगा चलो हमारे ग्रुप का है, अल्लाह माफ कर दे, सिफारिश कर दे और उन्हें जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर दे, ऐसा नहीं होता। आजकल बहुत सारे लोगों को तो कुरान की आयत के जरिए की ये मुगालता देते हैं। मैं एक मरतबा एक दुकान पे कुछ खरीदने के लिए खड़ा हुआ था, एक पोस्टर लगा हुआ था, उसमें कुरान की आयत का रेफरेंस दिया हुआ था कि उस वक्त हर एक आदमी अपने अपने ईमान के जरिए से हश्र के मैदान में बुलाया जाएगा। तो उसमें ये अकीदा उन्होंने दिया, हर एक इमाम अपना अपना झंडा लेकर आएगा, उसी इमाम के पीछे सब लोग खड़े होंगे और वो इमाम कहेगा अल्लाह क्या पूछने का है इनके बारे में मेरे से पूछ। उसमें ऐसा लिखा हुआ था। अल्लाह इमाम से पूछेगा हाँ चलो तुम इमाम साहब तुम जन्नत में, तुम जन्नत में, तुम्हारे सारे मानने वाले जन्नत। क्या ये आयत में ये माना मतलब है? ये मुखालिफा लोग हैं। तो अल्लाह कहता है वला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनसरून, ये अज़ाब में कमी भी नहीं होगी और कोई मदद करने वाला भी नहीं होगा। अल्लाह ताला ने क्या कहा है, तुम मेरे पास अकेले अकेले आओगे, कुरान की आयत है, तुम हशर के मैदान में अकेले अकेले आओगे, फुरादा, तुम अकेले अकेले मेरे पास आओगे, अकेले अकेले मैं हिसाब किताब लेने वाला, कोई मदद भी नहीं करने वाला। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह की इस सवाल से हम बचें कि अफ़तुमिनून बिबअज़िल किताब व तकफ़ुरून बिबअज़, बाज़ बातों को मानना बाज़ बातों का इनकार करना, ये जो रविश यहूदियों की थी, इससे हम बचना चाहते हैं। सबसे आसान, सबसे बेहतर, सबसे सिंपल और सादा तरीका ये है, कुरान मजीद की जो आयत सामने आए हैं, जो हुक्म उस पर मिले फौरन उसको मान ले। पहले आका वसल्लम की जो हदीस सामने आए उसको मान ले, उस पर अमल करें। सही ज़ईफ सब बाद में देखें, जो सामने आपके इल्म में, जो सुनी सुनाई नहीं, जो सामने आपके इल्म में आए उसको मान लो, उसके हिसाब से चलो। उन बातों का मत मानो जो आपने सिर्फ सुने हुए, देखे हुए नहीं है, पढ़े हुए नहीं। उनके पास भी तो है बहुत सारे, आज सलावत क्यों नहीं खत्म होते, उनके पास भी तो है, क्या है नहीं मालूम, है की बुनियाद पर नहीं। जो चीज आपके इल्म में आए, कुरान मजीद या अहदीस रसूल, उस पर फौरन अमल पैरा हो जाओ, अल्लाह के सारे अहकामात पर ईमान लाने के बराबर होगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी इस्लाह करे, साथ ही साथ आप लोगों की भी अल्लाह ताला इस्लाह करे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम प्यारे आका वसल्लम के बतलाए हुए तरीके पर जब तक दुनिया में है अमल करते हैं। अल्लाह ताला आप वसल्लम से और आप के सुन्नत तरीके से मोहब्बत करने की वजह से अल्लाह ताला हमें आखिरत में भी कामयाब करे। अल्लाह ताला यहूदियों, बनो इसराइलियों और ईसाइयों की रविश पर चलने से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।